Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 1, that is the last lesson from your book Flamingo. Here we are going to start. Here you can see 1 meaning in great grade of means fear. You can see the narrator of the story is a young school going boy named Franz. यहाँ पर जो narrate हो रही है the story is narrating here on a boy whose name is Friends. The totally story is based on only Friends. So Franz Joanne, who is going to narrate this story? Only Franz. Little Franz. He is a student of the school of Alsace and Lauren. That morning he was scared as he was late for school. So at that day, तो जो फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा fearful है. Scared means afraid, fearful है, full of fear है, as he was late for school. And also as their teacher Am Hamel had announced the previous day. और ये भी कि Am Hamel जो है उन्होंने announce किया previous day means the day before yesterday, yesterday that day, that he would test them on the topic of participles, and friends did not know anything at all. And what was the afraid? What is the reason of afraid? What is why friends was scared? Because he has a fear of Anne Hamel, who was a teacher of him, and he was announced yesterday that he will take a test of, or he will ask some questions of participants. तो इसीलिए फ्रांस को बहुत ज्यादा डर था एंड फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल और उसमें फ्रांस को कुछ भी नहीं पता था. ही वॉज मोर स्केर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड और उसको बहुत ज्यादा डर था कि वो स्कोल्ड करेंगे. एम हैमल इफ एम हैमल वॉज स्कोल्ड तो उसके अंदर फियर भरा हुआ था कि अगर वो उसको डांटते हैं तो क्या होगा. नेक्स्ट sawmill. Here sawmill means a factory for cutting wood. Drilling means exercising. पीटी वगैरह जो हम करते हैं दैट इंक्लूड्स इन ड्रिल. फ्रांस हैड अनदर ऑप्शन इन हिज माइंड टू मिस स्कूल और फ्रांस के पास दूसरा भी ऑप्शन था कि हम मिस कर दें स्कूल को एंड एंजॉय द डे आउट इन द वार्म एंड ब्राइट वेदर. जैसा कि वेदर वाज वेरी वार्म एंड वेरी ब्राइट, सो ही हैज एन अनदर ऑप्शन आल्सो. ही डिस्क्राइब द सीन, देयर वर बर्ड चिपिंग. वो डिस्क्राइब कर रहा है सीन को, वहां का जो सीनिक चल रहा था. Birds were chirping at that time on the trees, and the noise of Prussian soldiers doing the drill behind the sawmill also could also be heard. वहाँ पे जो Prussian soldiers थे, they were drilling at that time in sawmill, and the noise of drilling, it could be heard in the Fran's ear. Camping means here attracting, resist means to stay away. The scene outside was more attractive than the school, but friends controlled the temptation and choose to attend school. सीन जो था वो बहुत ज्यादा आउटसाइड था और वो आउटसाइड वाला जो सीन था दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल देन द स्कूल. क्योंकि स्कूल तो बोरिंग सा लगेगा, उस बच्चे को कुछ आता भी नहीं है, अब टीचर डांटने वाली है, उसको स्कोल्ड करेगी वो टीचर. अब वो जो टीचर स्कोल्ड करेगा, देन व्हाट इज द फियर, देन हाउ वाज हिज फियर, वी शुड नो इट. सो कंट्रोल कर रहा था उसकी टेम्पटेशन जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी ना वो चीजें, बर्ड्स वर चिर्पिंग, स्पेशल सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो वो उसको बहुत ज्यादा टैम्पिंग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसको स्कूल अटेंड करने से रोक रही थी. लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन था, तो ही हैज अ ऑप्शन टू गो टू स्कूल. दैट्स व्हाई ही चूज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट ही हैज टू गो एंड अटेंड द स्कूल. Here, bulletin board means a notice board for putting up the latest news and communication. Bulletin board वो होता है who gives information, ठीक है, information board या notice board you can say. Next is, as Franz walked past the town hall, he noticed a huge crowd at the notice board. जैसे ही फ्रेंच जो है पास कर रहा था टाउन हॉल से, जैसे ही पास हुआ उसने नोटिस किया, उसने ऑब्जर्व किया ह्यूज क्राउड जो है नोटिस बोर्ड पे. द वॉर विद रशिया हैड बिगन 2.5 years ago. जो प्रशिया वॉर जो है ना वो स्टार्ट होता है 2.5 years पहले. एंड सिंस देन ऑल द बैड न्यूज, अब जो प्रशियन जो न्यूज थी, बुलेटिन बोर्ड का जो इंफॉर्मेशन देने का आइडिया था, जो वे मैनर था, वो स्टार्ट हुआ था जस्ट बिफोर 2.5 years पहले. तो उसको 2.5 years ही हुए थे और उसमें हमेशा क्या था, इट ऑलवेज गिव्स बैड न्यूज. तो देयर वाज ऑलरेडी a feeling of internal that it should be in a
bad manner. So, like losing the war, occupation of Alsace and Lorraine by enemy, that is Prussia, etc., had been communicated to the people through this bulletin board. फ्रांस kept on walking towards the school. फ्रांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जा रहा था स्कूल के वे पे, स्कूल के रास्ते पे, एंड थॉट इन हिज माइंड दैट व्हाट न्यूज कुड हैव बीन पुट अप एट द बोर्ड नाउ. अब उसको इतना क्राउड देख के, इतना रशी एरिया देख के ना उसके मन में आ गया कि व्हाई डोंट आई सी व्हाट्स द न्यूज बिहाइंड इट. सो ही वेंट अवे. Here means apprentice means trainee. As he walked hurriedly towards the school, the blacksmith, who was also reading the news and had come along with his trainee, called out to friends from behind and said that he didn't go in such a hurry as there was plenty of time for him to reach school. अब वो बहुत हरिड मैनर में जा रहा था, बहुत ज्यादा क्विकली मैनर में जा रहा था. दैट्स वाई जो ब्लैकस्मिथ था वहां पे, वो उसने क्या किया, उसको बोला, ही सेड कि यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, देन व्हाई यू आर गोइंग इन अ हरिड मैनर, जस्ट टेक योर ब्रीथ. फ्रेंड्स थॉट दैट द ब्लैकस्मिथ वाज मेकिंग फन ऑफ हिम. तो फ्रेंड्स को लगा क्या कि ब्लैकस्मिथ जो है उसका फन बना रहा है. As he was already late for school, क्योंकि वो already late हो गया था स्कूल के लिए. When Franz reached the garden outside the school, जब फ्रांस गार्डन के पास पहुंचा स्कूल के बाहर, he was out of breath as he had walked very fast. तो उसको सांस में सांस आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, बहुत ज्यादा फास्टली मैनर में था. What a great bustle means a lot of noise created by many people. जब बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है, शोरगुल हो जाता है, यू कैन से, उसको कहते हैं हसल बसल. In unison means at the same time. Rapping means striking. Friends describe the usual scene at the school in the mornings. Friends ने describe किया usually जो scene चलता है normally स्कूल में morning time का. A lot of noise created by moving of desk की बहुत सारी noise आती है, बहुत ज्यादा shout होता है, because when students are entering in the school, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल, हसलिंग बसलिंग होती है, आना जाना लगा रहता है, अफरा तफरी मच जाती है. तो वही चीजें यहाँ पर हुई थी. तो इस स्कूल को फ्रांस वाज डिस्क्राइबिंग दिस सीन हियर. चिल्ड्रन रिपीटिंग देयर लेसन, चिल्ड्रन वर रिपीटिंग देयर लेसन, वो उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. एंड टीचर्स स्ट्राइकिंग द टेबल्स विद द रूलर्स कुड बी हर्ड. और टीचर्स की जो स्ट्राइक करने की, जो रूलर से स्किल से आदत है इसको टक टक करने की, तो स्ट्राइकिंग की, वो रैपिंग की आवाज भी सुनने को मिल रही है. Here you can see counted on, depended upon, commotion, noise and confusion. Here you can see a picture also that here teacher was doing same thing with the ruler. You can see. That day was unusual as there was no such sound coming out of the school, and seeing that the school was closed as it used to be on Sunday morning. और वहां पर जो अनयूजुअल मैनर लग रहा था, मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता स्कूल में, बट वो अनयूजुअल क्यों लग रहा था, बिकॉज ये आपको अभी पता चलेगा स्टोरी में. व्हाई शुड आई टेल यू. सो यहाँ पे साउंड जो आ रही थी स्कूल में, वैसी साउंड नहीं आ रही थी, वो हसलिंग बसलिंग वाली नहीं हो रही थी, और ऐसा लगा था इट सीम्स स्कूल should be school may be closed here, or just like to be a Sunday morning. Franz had planned that he would take cover under the commotion and reach the class without being noticed, but that did not seem possible. और वो क्लास तक पहुंचता है बिना नोटिस किए, कि जो कि पॉसिबल भी नहीं था इन चीजों को अनऑब्जर्व कर सके. Franz peeped inside his class and saw his classmates seated and Anne Hamel. फ्रांस जो है वहां पे क्लास में पूछता है कि आ जाऊं, और वो देखता है अपने क्लासमेट्स को और देखता है जो बैठे हुए हैं. एंड ही सॉ एम हैमल. एम हैमल, हु वाज एम हैमल? उनके टीचर. देयर टीचर वॉकिंग इन द क्लास विद द रूलर मेड ऑफ आयरन प्लेस्ड अंडर हिज आर्म. अपने हाथ में पकड़े हुए आयरन की स्केल को वो एम हैमल जो है राउंड ले रहे हैं. फ्रांस फियर अ बीटिंग. फ्रांस को डर था बीटिंग का. ब्लश मीन्स अ फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम. ब्लश का कर रहा है, फेस जो रेड कलर में हो गया, मतलब बहुत ज्यादा शर्माना सा और बहुत ज्यादा अजीब सा फेस हो जाता है, मतलब पूरा रेडिश रेडिश ब्लडिश ब्लड फेस हो जाता है. फ्रांस वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग लेट एंड फियर अ स्कोल्डिंग. अब फ्रांस को डर था कि एक तो शेम फील हुआ बिकॉज ही वॉज लेट, और स्कोल्डिंग का उसको डर भी था. as he had to enter the classroom in front of everyone. सबके सामने वो जब एंटर होगा तो क्या होगा. Maybe Anne Hamel scolded him, so he has a fear of this. Franz found it strange as Anne Hamel did not say it. अब इस बात पे
Franz was feeling very strangely. Why? Amhamel have not said a single word to me. Why he has not said? And on the contrary, politely asked him to get to his seat as the class was about to begin without him. अब वो politely पूछने लगा बैठते टाइम कि जैसे क्लास जो है वो अबाउट स्टार्ट कैसे हो गई बिना उसके, क्योंकि why because why he asked this thing, because उसको ये डर था कि पार्टिसिपल्स का जो टेस्ट बोला है वो भी तो होना है और वो कैसे नहीं हुआ, तो उसको वो भी डर था. ठीक है. फ्रांस हरिड टू हिज सीट, वो फटाफट से जाके सीट पे बैठ गया. उसको ये डर था तो फटाफट से जाके सीट पे बैठा वो. After some time, when he overcame this scare and became uncomfortable, और इन सब के बाद में जब वो फटाफट से जाता है अपनी सीट पे बैठता है, उसके बाद में वो ओवरकम करता है अपने फियर को, अपने स्केयरिंग को, और कंफर्टेबल जोन में आके फील करता है कि हाँ नाउ आई एम इन कंफर्टेबल जोन. ही नोटिस दैट देयर टीचर हैड वर्न हिज बेस्ट एम्ब्रॉयडर दैट डे. उसे ये भी नोटिस किया कि उसका टीचर जो है वो क्या है, वो ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड बन के आया है, मतलब ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं एम हैमिल ने, विच वी डू नॉट वांट टू वेयर इन अ नॉर्मल मैनर, इन अ नॉर्मल डे, इन एन ऑर्डिनरी डे यू कैन से. तो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं जो हम यूजुअली नहीं पहनते हैं. द टीचर नॉर्मली वोर एट ओकेजन, और टीचर्स जो है नॉर्मली इसको ओकेजन पे पहनते हैं. लाइक इंस्पेक्शन, कोई इंस्पेक्शन वाला डे है या अनप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज है. तो फ्रांस वॉन्डर इफ दैट डे वॉज अ नॉर्मल डे. फ्रांस को बहुत ज्यादा वॉन्डरिंग हुई कि क्या वो नॉर्मल डे था. ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज इन दैट डे. What could be the reason for Am Hamel to wear his special dress? कि वो क्या रीजन था Am Hamel के लिए कि वो ऐसे स्पेशल ड्रेस पहनकर आया. Next is, besides the whole school seemed so strange and solemn. अब उसके बाद भी पूरा स्कूल जो है ऐसा स्ट्रेंज फील कर रहा था और बहुत ज्यादा दुखी फील हो रहा था. उनके सोलम मतलब बहुत ज्यादा सैडनेस में था वो. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, और जो चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. वो बैक बेंचेस जो हमेशा एम्प्टी रहती है. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्फ, वहां पे विलेज पीपल गांव के लोग आके बैठे हैं हमारी तरह. ओल्ड हॉजर, ओल्ड हॉजर मीन्स जो चीफ होते हैं, जो चीफ होते हैं. ठीक है. मीन्स हैड, मुखिया जो आप कहते हैं गांव में. विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, जो उसकी थ्री कॉर्नर वाली हैट होती है उसके साथ में बैठा, मतलब वो लगाकर वो बैठा. द फॉर्मर मेयर, जो पिछला मेयर था, प्रीवियस मेयर वो भी था. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो प्रीवियस पोस्टमास्टर थे वो भी. एंड सेवरल अदर बिसाइड, और उनके बाद में और भी गांव के लोग बैठे थे, जिससे लग रहा था कि आज बैक बेंच पे गांव वाले लोग, विलेजर्स के मौके बैठे हैं, विलेज पीपल. वाई दे सेड हियर सोलम मीन सीरियस, बताया था बहुत सैड वाला, सीरियस बहुत सीवियर मैनर में. प्राइमर मीन्स बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज. हम मीन्स टॉर्न और डैमेज. दे ऑल लुक सैड, वो सारे दुखी हो रहे थे, बहुत दुखी नजर आ रहे थे. हॉजर हैड ब्रॉट हिज रीडर विच वाज ओल्ड एंड टॉर्न. हॉजर जो है, जो मुखिया है, वो रीड करने वाली चीज लेकर आए, मतलब अपना प्राइमर साथ में लेके आए. प्राइमर वॉज उनका जो ओल्ड बुक सेट है वो लेकर आए. एज वी ऑल नो कि विलेजर्स आर नॉट कंप्लीटली एजुकेटेड, सो उनके पास जो पुरानी ओल्ड बुक्स रखी थी वो लेकर आए साथ में. एंड जो फट भी गई थी, टॉर्न भी हो गई थी, ही हैड ओपन इट, कैप्ट इट ऑन हिज नीज, उन्होंने ओपन करी और अपनी नीज पे उसको रख रखी थी. एंड हैड प्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन इट, और वहां पे अपना चश्मा भी रखा हुआ था उनका. Here, grave means serious. Franz was confused and could not figure out what was happening that day. Franz was also confused in that day, और वो फिगर नहीं कर पा रहा था कि क्या क्या होने वाला है, क्या होगा यहाँ पे. जिस दिन एम हैमल टोल्ड देम, और उसी के बाद एम हैमल उसको बताता है दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि फ्रेंच language में it was the last. Yeah, I know this chapter is of chapter 1 and the chapter name is the last lesson. तो अब आपको समझ आ रहा होगा why author took this name. So now you get it, I think. As the Prussians in Berlin, जो Prussians थे बर्लिन में, उन्होंने ऑर्डर किया फ्रेंच लैंग्वेज के लिए would no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine,
कि अब अल्सास और लॉरेंस स्कूल में अब फ्रेंच ज्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी लंबे समय तक, एंड दैट जर्मन लैंग्वेज टॉट इंस्टेड, और उसकी जगह इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, instead means in place of, in place of French, we are going to teach what? German language. The German teacher would arrive the next day, और कल की तारीख में German teacher आ जाएगा, and as this was the last lesson in French, और last lesson होगा French का, he wanted them to pay attention, और वो क्या है? Attention pay करें. Thunderclap means used in comparison to refer to something startling or unexpected. Riches means here it refers to an unfortunate happening. Franz was shocked to know that he could not learn French any longer. Franz was also shocked by seeing, by listening this, कि अब फ्रांस ज्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में. And now he knew the latest news that had been put up at the bulletin board of the town hall. और अब उसको पता चला, अब वो जाना कि वहां पे वो जो बुलेटिन बोर्ड पे लेटेस्ट न्यूज के लिए क्राउड एरिया हो रहा था, रशी हो रहा था बहुत ज्यादा, तो व्हाट वाज द न्यूज बिहाइंड इट. सो उस पे यही न्यूज थी कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रेंच इन अल्सास एंड लॉरेन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न जर्मन लैंग्वेज हियर. Saar means a river which passes through France. It is a name of river of France. France regretted for not being serious towards studies. और फ्रांस को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हुआ कि मैं स्टडीज पे इतना सीरियसली क्यों ध्यान नहीं दे रहा था. एंड फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन हर्टिंग बर्ड्स एज एंड प्लेइंग इन द सार रिवर, और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बर्ड्स को, बर्ड्स एज की हंटिंग में और सार रिवर में खेलने में मैंने पूरा टाइम लगा दिया. वाई? Nuisance means problem or burden. Couldn't give up means cannot leave. Till now, Franz considered his books to be an unwanted burden, but suddenly he starts considering them to be his best friends, whom he could never leave. अब तक क्या है? फ्रांस कंसिडर करता है उसकी बुक्स को कि वो अनवांटेड बर्डन है, लेकिन सडनली जैसी बात है कि एम हैमिल वाज गोइंग, तो फ्रांस को सडनली रियलाइज हुआ और उसने स्टार्ट करने लग गया कंसिडरिंग उन पे कि वे तो बेस्ट फ्रेंड्स है मेरी, जो कि मैं कभी भी इनको नहीं छोड़ सकता. The writer wants to show the change in Fran's attitude. अब राइटर यहाँ पे जो नैरेटर है वो शो करना चाहता है आपको फ्रांस का एटीट्यूड, जो सडन चेंज हो गया टुवर्ड्स स्टडी आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट ही कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर. जैसे उसे सुना कि फ्रेंच अब मुझे ज्यादा दिनों तक ज्यादा लंबी नहीं पढ़ाई जाएगी, अब ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, सो उसके जो स्टडी के प्रति जो उसका एटीट्यूड है वो सडन चेंज हो गया और फ्रेंच पे ध्यान देने लग गया. Next, cranky means strange, short temper. News that their teacher Am Hamel was leaving him also had a similar impact on him. और जैसे ही न्यूज उन तक पहुंचेगी, that day was Am Hamel's last day for teaching here, तो ये भी बैड इम्पैक्ट उन पे डालती है और बहुत सैड इम्पैक्ट हो गया उनके लिए, वो बहुत ज्यादा सैड फील करने लगे. फ्रांस डिड नॉट वांट हिम टू गो अवे, और फ्रांस ये नहीं चाहता था कि वो वहां से जाए. ही नो लॉन्गर थॉट द टीचर टू बी शॉर्ट टेम्पर एंड स्ट्रिक्ट. उसने ये भी देखा कि टीचर जो है ज्यादा नहीं शॉर्ट टेम्पर और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रह सकते. संडे क्लोथ मीन्स हियर द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज. संडे को हम बहुत अच्छे खुले कपड़े पहनते हैं, हमारे अकॉर्डिंग पहनते हैं. हमें मंडे टू सैटरडे तो स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, विच वी डू नॉट लाइक. हम किसी भी स्कूल में पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, हमें स्कूल ड्रेस नहीं पसंद आती, उसको पहनना अच्छा नहीं लगता है, आई नो दैट, लेकिन ये कंपल्सरी होता है, ये यू हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म. Now, Franz knew that Am Hamel was wearing his best dress in honor of this last lesson. अब उसको बहुत ज्यादा रियलाइज भी हो रहा है कि अब उसने बेस्ट ड्रेस पहनी है आज के दिन, मतलब वही स्कूल ड्रेस जो उसको पसंद नहीं थी वही उसने देखा कि आज तो मैंने बहुत रिस्पेक्ट उसको ऑनर देने के लिए पहनी है. He also realized that the village man had come to pay respect. उसने ये भी रियलाइज किया कि अब पता चला, now I got it, why village people were sitting here. तो विलेज पीपल उसको रिस्पेक्ट देने आए थे एंड थैंक कहने आए थे एम हैमिल को उसकी सर्विस के लिए. और हाउ मेनी इयर्स ऑफ हिज सर्विस इन दैट स्कूल? 40 years, 40 years. The village men had come to the class as they were also repenting for not have studied well in their childhood. They had come to thank their teacher for his 40 years of service as a teacher of French.
वो उसको इसलिए नहीं आए थे कि वो रिपेंट कर सके, मतलब उनकी स्टडी को दोबारा कर सके, दोबारा पढ़ने नहीं आए थे, वो उस ऑनर में आए थे कि आपने इस स्कूल को 40 इयर्स दिए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर इट। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू शो रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और अपने कंट्री को रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे, एंड वर सेड एज देयर मदर टंग फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट टू दैम। और जैसा कि उनकी मदर टंग क्या थी, फ्रेंच थी, इसीलिए वो आगे नहीं पढ़ाई जाएगी, आगे से टीच नहीं होगी, इसीलिए उसको थोड़ा सा सैड फील हो रहा था। सो स्टूडेंट, दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, वी विल definitely continue it in our next class, part 2. Thank you.